Okay, good evening, everyone. So we are starting with the last chapter. Means there is one more chapter, but paper to the shirt chapter का नाम है chapter number 8. Chapter number 8, binomial distribution. Binomial distribution. अब long ago 11th standard में अपन ने binomial theorem पढ़ा था, right? So what was binomial theorem? A plus b whole square, a plus b whole cube, a plus b अपन ने binomial theorem से पढ़ा था, right? So binomial theorem कसा असतो कि if you want to expand a plus b whole to the power n, a plus b whole to the power n, let's revise it a little bit. याचा काम नहीं है इथे, but इसके general term का काम है मुझे. Okay, so a plus b whole to the power n becomes, अपन शुरू कहाँ से करते थे? अगर तुमको बहुत पहले का 11th स्टैंडर्ड का याद होगा तो we used to start from NC0. ठीक है, JEE वाला ना मोस्टली लक्षित रहता है क्योंकि उनको ये करना है. NC0, then a की highest power and b की lowest power. Then we start studying it. NC1, a की पावर 1 से कम होती है, b की पावर 1 से बढ़ने वाली है. Then a की पावर 1 फिर से 1 से कम होगी तो b की पावर बढ़ेगी, and so on up to the last term which is NCN, जहाँ पे a की पावर 0 रहेगी and b की पावर highest n रहेगी. Okay, this was binomial theorem. इससे we found out, शायद से ये याद नहीं होगा तुमको, एक जनरल टर्म निकाला था. जनरल टर्म ऐसा था which is NCR, a to the power r, b to the power n minus r. You don't have to remember this. ये जनरल टर्म था, मैं मिटाने वाला हूँ. You don't even have to write this. Okay, तो binomial distribution म्हणजे काय असतं? There is a thing called Bernoulli's trial. Okay, first thing we are going to study today is what is a trial, Bernoulli's trial. Okay, now Bernoulli's trial ये तुम्हारा चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग है. दिस वाज नॉट इम्पोर्टेंट, ये मैं सिर्फ तुमको बताने के लिए बता रहा था कि 11th स्टँडर्ड में बायनॉमियल थेरम ची जनरल टर्मचा इथे आपण यूज करणार आहे. ओके, सो आज का फर्स्ट हेडिंग है, चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग इज बर्नौलीज ट्रायल, BERNOULLI ट्रायल. ओके, उसकी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, बट मैं तुमको अच्छे से समझा के दूंगा. तुमने सुन भी लिया तो तुमको एक बार में ध्यान में रहेगा. डेफिनेशन कैसी है कि ट्रायल्स, वी विल राइट एग्जैक्टली बुकिश डेफिनेशन बिकॉज मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा फिर. ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, trials of a random experiment are called Bernoulli trial, are called बर्नौली ट्रायल. मेरा प्रोनाउंसिएशन बर्नौली में भी गलत हो सकता है, बट हमने ऐसे ही सुना है. सो प्लीज, सो ऑलवेज चेक योर प्रोनाउंसिएशंस ऑन गूगल. टाइप बर्नौली का स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, आई थिंक यू विल गेट इट. ओके, सो trials of a random experiment are called Bernoulli trial if they satisfy the following conditions. If they satisfy the following conditions. ओके, फर्स्ट है, ये मैं तुमको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, पहले लिख लो सिर्फ. फर्स्ट है, each trial has exactly two outcomes, has exactly two outcomes. तो कैसे पहचानना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है? बताता हूं, ये इससे पता चलता है. आउटकम्स, फर्स्ट इज सक्सेस and second is failure. First is success and second is failure. Okay, so how do you judge कि ये binomial distribution से problem है? तुमको एग्जाम में थोड़ी बता देगा कि binomial distribution का problem है. तो कैसे पहचानना binomial distribution का? ये दो conditions उसके important है. First, each trial has exactly two outcomes, success, failure. Second, the probability of success, the probability of
success remains the same in each trial. Okay, so we will move on to the first point. First point क्या है? Each trial has exactly two outcomes. For example, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो रहता है, a coin is tossed. दोनों outcomes है, heads, tails. That's it. So usually whenever you are solving problem in binomial distribution, heads is considered as success and tails is considered as failure. अब जिसने बनाया वैसे उसका ये था लॉजिक कि हेड सक्सेस है, टेल्स फेलियर है. कोई कंपलसरी नहीं है, बट whenever you are solving problems here, always take heads as a success and tails as a failure. Okay, now there is one more. तुम्ही असा विचार करू शकता की ओके यू आर सिलेक्टिंग समथिंग अँड त्यातला तो तुम्ही एखाद्या दुकानात गेले, तुम्ही बल्ब बघत आहे एखादा, यू आर सिलेक्टिंग अ बल्ब एंड उसके चांसेस है डिफेक्टिव निकलने के या नहीं निकलने के. दो ही चांसेस है ना. तब बल्ब एक तो बल्ब अच्छा रहेगा वरना खराब रहेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है. फूटा हुआ रहेगा तो वो भी खराब इसमें आएगा, पर वो दिख जाएगा. सो आइदर द बल्ब इज गुड और इट इज बैड. देयर इज ओनली two possibilities, success or failure. Correct? Binomial distribution. Second is probability of success remains the same in each trial. ट्रायल मीन्स अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉइन टॉस किया 4 बार, तो देर आर 4 ट्रायल्स. ओके, देर आर 4 ट्रायल्स. अब चारों ट्रायल में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही है. यस, ऑफ कोर्स इट इज सेम. ओके, हेड्स आने के एक तो हेड्स आएगा वरना टेल्स आएगा ना, पर हेड्स यायची प्रोबेबिलिटी इज 1/2 1/2 1/2 1/2. राइट, 4 बार फेंका तो भी हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी. दिस कवर्स आवर सेकंड पॉइंट. Second point क्या है? Probability of success remains same in each trial. मतलब probability of success will remain same. उसको कितने बार भी coin toss किया, कितने बार भी ये किया, उससे फर्क नहीं पड़ता. Okay, and probability of success मैं ये बाद में लिख के दूंगा, अपन जहाँ formula लिखो actual binomial distribution सा. So this is Bernoulli's trial. इसको क्या बोलते हैं? Bernoulli's trial. And if there is a Bernoulli trial, there is a binomial distribution. So next heading है अपना binomial distribution. Bernoulli's trial हो गया. अब अपन binomial distribution. So there is a thing called probability distribution. वो मैं ये चैप्टर के बाद पढ़ाने वाला हूँ. But binomial distribution एंड डिस्ट्रीब्यूशन हा जो वर्ड है, इसका मीनिंग मैं तुमको वो चैप्टर में और क्लियरली बताऊंगा. आज मैं तुमको सिर्फ ऊपर ऊपर बताऊंगा. ओके ओके, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. देयर इज अ थिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ज्याच्यात तुम मतलब मैं और एक चैप्टर लूंगा उसमें बताऊंगा. बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मध्ये you will use the general formula of binomial theorem. अब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कसं रिप्रेझेंट करतात, क्या है क्या नहीं है, सब बताऊंगा. सो 2-3 गोष्टी आहे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मध्ये. पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बस इतना ध्यान में रखना. प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. म्हणजे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेझेंटेड बाय पी ऑफ एक्स. जैसे प्रोबेबिलिटीला रिप्रेझेंट करतो ना आपण, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, प्रोबेबिलिटी distribution किंवा in binomial distribution, I am going to say it in a very different manner. P of x is called probability function. ठीक है, कोई अलग मत जाओ, खूब सिंपल ठेवाल. These are the words that are very simple. Function f of x is a function in x. P of x is a probability function in x. Okay, for example, f of x is equals to, do not write this, f of x is equals to x square plus 2x plus 1. F of x is a quadratic function in x. P of x is a probability function in x. अब समझा वर्डिंग्स कैसे? तो इसको कुछ भी ऐसे अलग रहा ना तो काही वेगळं नसतं. इट्स वी आर डूइंग द सेम थिंग. जैसे इन स्टैटिस्टिक्स तुम लोग पढ़ोगे
frequency distribution. In probability, it is probability distribution. Okay, it's not very difficult. It's not very different from what we were doing till now or what we were used to do. So उससे अलग नहीं है, but अपन इसको simple रखेंगे. P of x is called probability function of the binomial distribution. Of the binomial distribution. Basically, there are more distribution. Poisson म्हणून पण एक distribution है. उधर भी P of x ही represent करते हैं. But basically P of x is just your probability function. हे statement लिहून घ्या. It is called probability function. Okay. अब binomial distribution कैसे represent करते हैं? X follows binomial distribution and उसके parameters है N and P. Okay. इसको पढ़ते कैसे है? पढ़ते कैसे है? X follows binomial distribution with parameters N and P. वो N और P क्या रहता है वो भी बताते जाता हूँ मैं. X follows binomial distribution with parameters N and P. मैं भी लिखूंगा. X follows, very important statement, binomial distribution with parameters N and P. ओके. एन एंड पी क्या रहता है? मैं जब फॉर्मूला लिख के दूंगा तुमको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तब बताऊंगा. सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन असं लिहितात पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए. सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज करते हैं? अब इतना सब कुछ तामझाम कर लिया, पूरा रामायण भारत हो गया, पर पता ही नहीं कि राम कौन है, तो क्या फर्क पड़ेगा अपने को, राइट? प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम है. तो what do you use binomial distribution for? So binomial distribution is used to calculate probabilities. जहां पे तुम्हारा coin is tossed not once twice but 10 times or 100 times or 1000 times. अगर मैंने बोला coin is tossed twice, तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही चिल्लर है, एच 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 टी टी एच टी टी. हाँ ठीक है. थ्राइस सर ये भी इजी है, कोई टेंशन ही नहीं. coin is tossed 2000 times. करते बैठो अब, राइट? इट विल, मतलब अगर टाइम पास ही करना है, एज आई यूज्ड टू से क्लास में कि टाइम पास ही करना है अपने को, तो बहुत टाइम है अपने पास. 2000 बार कॉइन टॉस करना और एक्चुअल कॉइन टॉस करके देख लेना 2000 बार. कॉइन टॉस कर रहे, हाँ काय आलं हेड्स, समोर हेड्स लिहायचं, फिर कॉइन टॉस किया, क्या आया? टेल्स आया, फिर टेल्स लिखने बैठेगा. सो यू कैन डू दैट, बट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स अस यूजिंग मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला. क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, nothing else. Okay, क्या calculate कर रहे हैं अपन? Probability. So binomial distribution चा हा formula है. This important statement I am marking in blue. म्हणजे हा ब्लू मध्ये मार्क करतोय मी. अगर आपको कभी लेक्चर नोट्स लगे तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, मैं वैसे के वैसे ही लेक्चर नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगा. ओके. देन अपन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे. सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, या सिंपल पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों चलता है. इज स्मॉल एक्स यहाँ पे यूजुअली इज एन सी एक्स p to the power x q to the power n minus x. ओके. अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना. इट्स वेरी 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 सेम टू बायनोमियल थ्योरम सा जनरल टर्म, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स. ओके. अब यहाँ पे जो मैंने n और p लिखा था पैरामीटर्स में, वो ध्यान दो. सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज टू पैरामीटर्स, n एंड p. p एंड q नहीं, बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं p एंड q में. इट्स नॉट p एंड q, इट्स n एंड p. ओके. सो यहाँ पे एन पी क्यू क्या क्या है बताता हूँ. n is number of trials. n is number of trials. p is probability of success. p काय असतं ते? Probability of success.
दो ही है ना इसमें, सक्सेस की और फेलियर, करेक्ट. एंड Q इज probability of failure. Probability of failure. Okay. N is number of trials. So for example, coin अगर 10 बार फेंका तो N is 10. Okay. coin 10,000 बार फेंका तो N is 1000. Number of trials, कितने बार अपन उसको ट्राई कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट को. P is probability of success and Q is probability of failure. क्लियर. सो ये एन पी एक्स असं पूर्ण तुमचं एन सॉरी एन पी क्यू ये तुम्हारे पॅरामीटर्स हो गए. पॅरामीटर्स आर युजली एन एंड पी. क्यू आपण कॅल्क्युलेट करतो प्रोबॅबिलिटी. प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेल्युअर उलटा राहील. जर सक्सेस 1/2 है तो फेल्युअर आधा हो जाएगा, मतलब 1/2 1/2. टोटल प्रोबॅबिलिटी कितनी रहती है तुम्हारी 1. सो दिस इज important formula, means this is the formula for binomial distribution. Very similar, very same, as almost same to what Vic says binomial theorem चा general term. उधर से ही आया है basically. Okay. Note, important note before we move on to problems. The number of trials should be fixed. The number of trials should be fixed. Should be fixed. मतलब आधे प्रॉब्लम में 10 बताया, आधे प्रॉब्लम में 20 बार फेंका कॉइन को, वो नहीं चलेगा. ओके. एंड द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट. द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट मतलब पहले कॉइन टॉस के ऊपर दूसरे कॉइन टॉस भरोसे में नहीं रहना चाहिए कि पहला कॉइन फेंका मैंने तो उसका जो आंसर आएगा उस पे मैं दूसरा कॉइन टॉस फेंकूंगा. दैट इज नॉट द केस. दैट शुड नॉट बी द केस. ओके. प्रॉब्लम्स में तुमको शायद से ज्यादा समझ में आ जाएगा. प्रॉब्लम लिखेंगे. इफ क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन is tossed, if a coin is tossed 10 times, find the probability of getting, find the probability of getting, तीन questions है, sub questions, exactly 6 heads, exactly 6 heads. Okay. Second है at least 6 heads, मतलब कम से कम 6 head चाहिए, टोटल 10 इसमें से. एंड थर्ड है at the most 6 heads, at the most 6 heads. ओके. असे 3 क्वेश्चन आहे आपल्याकडे. लेट्स गो विथ द बेसिक थिंग. खूप बेसिक पासून आपण शिकणं हे करू कि बायनोमियल फॉलो होता है कि नहीं होता है. मतलब यहाँ पे तुमको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो होना है, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी. बोला थोड़ी है बायनोमियल फॉलो होता है. ठीक है, अपने को पता है बायनोमियल चैप्टर शुरू है, इसलिए तुमको पता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है. एग्जाम में कैसे पता चलेगा. कॉइन इज टॉस्ड म्हटला है. ठीक है, तो उसका ये जो रहेगा वो आइदर सक्सेस और फेलियर पे आ गया, क्योंकि हेड्स मतलब सक्सेस और टेल्स मतलब फेलियर. एंड एन आलो तुमचं विच इज 10 टाइम्स. ठीक है. तो और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. द नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फिक्स्ड. हाँ, फिक्स्ड है. 10 बार फेंका, उसके ऊपर कहीं नहीं जा रहा वो. ठीक है. एंड ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट. अगर मैंने पहली बार कॉइन फेंका तो उससे मेरे दूसरे बार या तीसरे बार फेंकने से कोई फर्क पड़ता क्या. नहीं. तो ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. इट फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. कारण की सक्सेस एंड फेलियर वर आलो. अ प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कन्सिडर्ड एज हेड्स. तर याचे प्रॉब्लेम कसे सुरू होतात पहा. मतलब इसके क्वेश्चंस को लिखने का एक तरीका है. लेट किंवा असं लिहितात सगळ्यात पहिले. ऍक्च्युअल बुक पे काफी अच्छे से दिया है तो वैसे ही फॉलो करेंगे. द रिपीटेड टॉसेस ऑफ अ कॉइन, repeated tosses of a coin
are Bernoulli trials. आर बर्नौली ट्रायल्स, मतलब वो बर्नौली ट्रायल्स में आ गया ना, बार बार अपन एक ही चीज को 10-15 बार, 10 बार, 20 बार, 1000 टाइम्स कर सकते हैं। यहाँ पे कितने बार किया उसने, कॉइन कितने बार फेंका है, 10 बार। ओके, देन लेट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्यों ये लिखते हैं, क्वेश्चन वरून कळतं आपल्याला किसके बारे में बात कर रहे हो लोग, हेड्स के बारे में। तो वी विल डिनोट अ वेरिएबल एक्स, उसको रैंडम वेरिएबल बोला जाता है। अगेन दैट विल बी टोल्ड इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल। यहाँ पे सिर्फ समझ लो उसको क्या बोला जाता है। इट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, एक वेरिएबल काही नाव असू शकतं। यूजुअली इन प्रोबेबिलिटी वी टेक एक्स, लेट एक्स डिनोट number of heads, let x denote number of heads। ओके, ठीक है। तो अगर मैंने 10 बार कॉइन टॉस किया तो कितने बार हेड आया इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पण पहिले काय विचारलंय त्यांनी, पहला क्वेश्चन इज एग्जैक्टली 6 बार हेड आया, इसका मतलब बचे हुए 4 में टेल आया। लॉजिक खूप सिंपल, एकदम सिंपल, जैसे अपन बचपन में सोच, कॉमन सेंस वापरू अपन। कॉमन सेंस क्या है, अगर मैंने 10 बार कॉइन फेंका, 6 बार हेड आया, तो बचे हुए 4 बार क्या आया, टेल्स आया होगा, और तो कुछ आ नहीं सकता, राइट ना। आपण आता त्याची प्रोबेबिलिटीज हे करणार आहे, ठीक है। सो क्लियरली इट फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको क्या रखना, क्लियरली एक्स follows binomial distribution with parameters n and p। n number of trials, कितने trials है, 10। p probability of success, अब उसको डिफाइन करना पड़ता है। ओके, p is probability of heads, probability of heads मतलब सक्सेस। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को सक्सेस बोला जाता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हेड्स और टेल्स में कितनी है, आधी आधी होगी ना, एक तो हेड्स आएगा वरना टेल्स आएगा ना। अपन रजनीकांत है ना, अपना जयवीर वाला शोले वाला पिक्चर का, शोले पिक्चर का कॉइन है कि रजनीकांत का कॉइन ऐसे बीच में खड़ा रह सकता है, शोले पिक्चर में उसका बायस्ड कॉइन था, दोनों तरफ सेम ही था उसका। तो वैसा कोई कॉइन नहीं है अपना। सो आइदर इट विल बी हेड और इट विल बी अ टेल। सो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो देयरफॉर क्यू आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस किया तो इट विल बी 1/2। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। क्वेश्चन है सर, ये हमेशा सेम तो नहीं रहेगा, 1/2 ही रहेगा, नहीं। सक्सेसची प्रोबेबिलिटी चेंज होईल तर फेल्युअरची पण प्रोबेबिलिटी चेंज होईल। मे बी सक्सेसची कुठे, या पर्टिक्युलर क्वेश्चन साठी इट्स 1/2 बिकॉज हेड्स और टेल्स है। आगे भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ऑफ कोर्स मैं लूंगा, जिसमें तुम्हारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और फेलियर की कम है, या फिर सक्सेस की कम है फेलियर की ज्यादा, डिपेंड करता है। हियर इट इज 1/2। ठीक है। एन किती दिलाय, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने अपने, 10। सो आपल्याकडे ऑलमोस्ट सगळं आलं। सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशनचा p ऑफ x इज इक्वल्स टू स्मॉल x इज इक्वल्स टू ncx p to the power x q to the power n minus x। n पता है, p पता है, q पता है, बचा क्या, x। x कहां से मिलने वाला है, x डिनोट क्या कर रहा है, दिस इज, दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। x डिनोट क्या कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है x, हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो पहले इसमें कितने हेड्स चाहिए, 6। तो पहल्या ह्याच्यात x डायरेक्टली किती आहे तुमचा, 6। सो इन फर्स्ट केस जहां पे तुमको बोला गया है कि नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, सो नंबर ऑफ हेड्स साठी काय है, एग्जैक्टली 6 चाहिए ना अपने को, एग्जैक्टली 6 हेड्स, करेक्ट। किती पाहिजे आपल्याला, एक्झॅक्टली 6 हेड्स। देयरफॉर capital X is equals to 6। तो therefore P of X is equals to 6 चा काय येणार आहे, 6C, सॉरी N10 आहे, 10C6। क्या है अपना, 10C6 P to the power, P is 1/2 to the power X म्हणजे 6
यहाँ पे क्या आएगा 1/2 टू द पावर क्या आएगा तुम्हारा 10 - 6 करेक्ट। क्या आएगा 10 - 6 इधर तक क्लियर है। आता पहा जिन लोगों को नहीं पता सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन दिस इज कॉम्बिनेशन NCR n factorial upon n minus r whole factorial into r factorial जिनको नहीं पता बाकी तो आई होप जो लोग 11वीं में थे मेरे साथ उनको पता है NCR is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factorial पहला ही प्रॉब्लम है तो मैं प्रॉपर छुड़ा के दूंगा so 10C6 will be 10 factorial upon 10 minus 6 whole factorial into 6 factorial ओके सो 10 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 6 विल बी 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को तोड़ रहा हूं मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 6 फैक्टोरियल को वैसे ही रखूंगा फर्स्ट ही प्रॉब्लम है इसलिए प्रॉपर स्टेप वाइज छुड़ा के दूंगा सो वी गेट ये तो गया 4 इंटू 2 इज 8 यहाँ पे ये गया 3 ones and 3 it is this is 3 times so 3 into 7 21 and 21 into 10 will be 210 okay so your 10C6 is this so therefore probability of x is equals to 6 made 210 into 1 by 2 to the power probability of ये था 6 into 1 by 2 to the power 4 मैं ये दोनों 1/2 को कंबाइन कर सकता हूँ ऑफ कोर्स कर सकता हूँ राइट सो यहाँ पे क्या आएगा 210 इंटू 1/2 टू द पावर लॉज ऑफ इंडाइसिस के कारण अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होते हैं तो 6 + 4 is 10 now this becomes 210 upon 2 to the power 10 1 to the power 10 is 1 2 to the power 10 जो डिनोमिनेटर में बैठा है तो अगर तुमने वो गेम नहीं खेला होगा 2048 तो खेल लेना उससे पता चलता है कि दिस इज 1024 ओके 2 से डिवाइड किया दोनों को तो दिस इज 105 एंड दिस इज 512 एंड दैट्स योर आंसर इतना भी रखा तो तुमको मार्क्स मिल जाएंगे उसको पॉइंट में नहीं भी किया तो भी चलता है ओके नेक्स्ट सेकंड पार्ट मध्ये काय विचारलंय त्यांनी ऍट लीस्ट 6 हेड्स ऍट लीस्ट 6 हेड्स ऍट लीस्ट 6 हेड्स म्हटलं तो लॉजिक कसं येईल सांगतो एटलीस्ट 6 हेड्स मीन्स कम से कम 6 हेड्स तो भी चाहिए टोटल कॉइन टॉस कितने हैं 10 तो कम से कम 10 में से कम 6 हेड तो भी चाहिए कम से कम मतलब अगर मेरे को लिखना होगा तो कैन आई राइट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 मतलब कम से कम 6 हेड तो भी आएंगे तो एक तो वो 6 रहेंगे और या तो 7 या तो 8 या तो 9 या तो 10 ऑफकोर्स असं येणार आहे त्यांचं मेक सेन्स राईट सो व्हॉट माय हैबिट इज तुमच्या बुक मध्ये ते का नाही करत मला नाही माहिती पर मेरी हैबिट ऐसी है कि मैं ये जो टर्म है यहाँ पे या याला प्रॉपर सोडवून ठेवतो जो ये टर्म है इसको आधा छुड़ा के रखता हूँ इधर के इधर ही ओके सो दैट 1/2 सेम ही जाने वाले हैं इसलिए मैं उसको 1 से छुड़ा के रखता हूँ बट इट्स ओके ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 6 ये तो अब भी छुड़ाया अपन ने तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 105/512 प्लस x इज इक्वल्स टू 7 x इज इक्वल्स टू 7 मतलब x इज इक्वल्स टू 7 बेसिकली लिखा है मैंने x इज इक्वल्स टू 7 so 10C7 1/2 to the power x into 1/2 to the power 10 minus x करेक्ट तो अगर तुमको लॉजिक समझ में आ रहा होगा तो 10th है तो 7 3 10
बार बार वो 10 के तरफ ही जाने वाला है, राइट? मतलब टोटल इज बेसिकली योर 10। तो आई ऑलवेज यूज टू सॉल्व इट फर्स्ट, बट ठीक है, यहाँ पे भी छुड़ा है तभी भी चलेगा। प्लस 10c8 1/2 टू द पावर 8 1/2 टू द पावर 10 minus 8 plus 10c9 1/2 to the power 10, sorry 9 into 1/2 to the power 10 minus 9 plus 10c10 1/2 to the power 10 into 1/2 to the power 10 minus 10। सिस्टमैटिक वे में लिख लिया उसको और कुछ नहीं किया। So we get 105 upon 512 plus 10c7। So 10c7 अगेन ऐसे ही निकालना पड़ेगा अपने को। 10c7 को अभी के लिए मैंने वैसे ही रखा है, यहाँ पे आएगा 1/2 टू द पावर 10 प्लस 10c8 को ऐसे ही रखा है 1/2 टू द पावर 10 प्लस 10c9 को वैसे ही रखा, नीचे लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन जितना आसान कर सकता हूँ उतना आसान कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। प्लस 10c10 1/2 टू द पावर 10। Okay. Now, first term मध्ये पण instead of writing like this, I can write it 10c6 1/2 to the power 10. ऐसे लिख सकता हूँ मैं, so that 1/2 to the power 10 common निकाल के I can just add them. Okay. अब तुमको अगर नहीं पता होगा तो 10c6 plus 10c7 plus 10c8 हर एक को छुड़ा लेना, बट दो तीन चीजें तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। 10c10, ओके, सो आई गेट 1/2 टू द पावर 10। ये तो सॉल्व किया था, 210 आया था अपना। 10c7 इज 120, ऑफ कोर्स यू हैव टू कैलकुलेट, मैं अभी बता रहा हूँ। 10c8 इज 45, 10c9 इज ऑलवेज 10 बिकॉज उसमें एक ही का डिफरेंस है। तो 10c1 और 10c9 सेम रहते हैं। 10c0 10c10 दोनों का आंसर 1 रहता है। तो 10c9 इज 10 and 10c10 is 1. After adding everything, 200, 300 plus 30, 330, 375, 385, 386. So we get 386 upon 1024, okay, int is equals to, उसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 193 and that is equals to 193 upon 500। अब अगर तुमने लॉजिक लगाया, थोड़ा सा लॉजिक लगाया, तो पहा थर्ड वाला, ऍक्च्युअल थर्ड वाला तुमको छुडाना है, मी तुम्हाला लॉजिक सांगतो। ऍट द मोस्ट 6 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 हेड चाहिए। तो कैन आई राइट, मतलब 6 कैसा रहेगा, एक तो 0 रह सकते हैं हेड, तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 तो कैन आई राइट दिस एज लेस देन और इक्वल टू 6? ऑफ कोर्स आई कैन राइट, पर अब भी मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 वाला छुड़ाया, तो मैं टोटल में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6 छुड़ाता हूँ। ग्रेटर देन 6 आएगा, इथे लेस देन और इक्वल टू तो इधर ग्रेटर देन आएगा, वो कंफ्यूजन ना करो, कारण कि इधर 6 इंक्लूड हुआ तो इधर नहीं कर सकते, वरना तुम दोनों में से माइनस कर दोगे उसको। सो व्हाट वी गेट इज 1 माइनस पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 वाले मतलब कौन से आएंगे, सिर्फ ग्रेट इज इक्वल्स टू 7 प्लस x is equals to 8 plus p of x is equals to 9 plus p of x is equals to 10। ये greater than 6 हुए तुम्हारे। either you can do this or p of x less than or equal to 6 मतलब वो इक्वल रहेगा p of x is equals to 0 plus p of x is equals to 1 plus probability of जब दो heads रहेंगे मतलब p of x is equals to 2, p of x is equals to 3, x is equals to 4 and x is equals to 5। both can be done। I will suggest, ये दोनों मेथड सही है। I will suggest stick to one, कारण की पुन्हा नंतर जे येतील तब तुम्हारे ट्रायल्स बढ़ेंगे और तब तुमको फर्स्ट वाली मेथड ज्यादा आसान पड़ेगी।
Okay, so I want you to solve this by either method you want to, but I will suggest stick to method 1. So this was basics of binomial distribution. कल इसके और प्रॉब्लम किए जाएंगे.